Now question number 121, Sriman Constantine Ravindran ji. 21, question number. Honorable Minister, माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। the first supplementary, Sriman Constantine Ravindran ji. Thank you, sir. Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation of Gram Sabhas, women and tribal communities in planning and implementation? Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports? Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation. The expected... Constantine ji, please be specific about your question. So Okay. long question, then All are please interrelated, sir. come to the specific question, please. Okay. Carry on. The monitoring mechanism proposed to prevent duplication of expenditure and improve accountability. Thank you, sir. Sir, the member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the biodiversity fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023, supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit Sharing Regulation 2025. The present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of biological resources and associated traditional knowledge. It operates through a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority at the national level, State Biodiversity Authority and Biodiversity Council and management committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26. A second supplementary, Sriman Ashok Rao Shankar Rao Chauhan ji. Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the coming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest-dwelling PVTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport Gram Sabha-based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats. Honorable Minister. Sir, the coming Montreal Global Biodiversity Framework provide the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity targets and supported by 142 national indicators.
Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NB and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit, the concerned community, which the question is raised by the particular member. Yes, also. Third supplementary, Shriman Dr. Ashok Kumar Mittal ji. एनवायरनमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट्स में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए। धन्यवाद। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है। बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है। और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। और ये निश्चित रूप से देश की बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है। इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं। Now, fourth supplementary, Dr. Srimati Mehta Visram Kulkarni ji. धन्यवाद सभापति महोदय। बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के ज़रिए अर्बन एरियाज़ में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करें, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है, वो बायोडाइवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। Now, question number 122, Shriman A.A. Rahim ji. Second supplementary, through P. Wilson ji. Through this House, I would like to ask the Honourable Minister the reasons for the government decision to abstain from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers, and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ILO के गिग वर्कर्स के
विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चंस पूछा है, मैं बताना चाहूँगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज़ के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया गया है। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूँगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी ILO ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है। हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी। Honorable Chairman Sir, with reference to the impact on employment security, will the Honorable Minister state if any assessment has been made on how the new 50% basic wage rule under the Code on Wages will impact workers' eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने एक प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आए
ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट, माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे। आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से, उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे। आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी, आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा ITI की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक ITI काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर को उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा
12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है। कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए, ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है, ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई, तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए, ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए बदलते समय के साथ स्किलिंग, रीस्किलिंग और रीस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्रीमान संतोष कुमार पी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी। धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में एक विषय लाना चाहता हूं कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे, वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूं स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है। तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी? एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है। 3 क्लासिफिकेशंस दी हैं, ए, बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है, बड़े जगहें हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। विथ योर क्वेश्चंस ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए। और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूरता खाना मिले और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के, उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था। आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें, वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था। स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा। लेबर कोड में एक फ्लोर वेज का प्रावधान करा गया है। तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, इतना जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं। उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है। हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC, यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च,
और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है। उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा और ये फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करें, उसमें ये सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में 2 बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है। थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी। Answer through you, sir. Sir, now the ministry is announcing minimum wages 5-year once or 3-year once or 2-year once regularly. The ministry should announce the minimum wages every financial year without fail. Sir, the minimum wages not announced yearly by the ministry. The ministry has any proposal to announce minimum wages every financial year that will help the laborers across the country. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में 2 बार वीडीआर के द्वारा, वीडीएस के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव। Thank you. Thank you so much, Honorable Chairman Sir. जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज़ में प्राइस राइज हो रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास से बिलोंग्स करते हैं, जो ऑन स्किल लेबर और स्किल लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना ज़रूरी है। वो बढ़ाने की कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे उड़ीसा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंट्रैक्चुअल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहेबिलिटेशन किस तरह से हो और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहाँ पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और कि वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताइए। थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूँगा आपके द्वारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है। देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है। स्वाभाविक तौर पर यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपना सैलरी बढ़नी चाहिए। सभी राज्य को ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ। भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है। उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर
वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पालमिक जी। सर 124 ऑनरेबल मिनिस्टर। होटल पे रखा है अध्यक्ष। नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पालमिक जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, एर्नाकुलम में है, संभाजी नगर, बेंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और KSSR में। इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स हैं वो टॉप स्कीम में भी है, जो LA के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था। पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी अग्रसर भूमिका रखी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए, और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है, और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी। शुक्रिया चेयरमैन सर। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कई षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्लकशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है इसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं, और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे, आज वो स्कूलों में और खेलकूद के ज़रिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा, और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं, क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशंस का, जहाँ उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूँगा। शुक्रिया। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसको बचाना उस समय की मांग है, और नहीं केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है,
एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से 1 साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, 2 दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो, उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है। सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहेबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश की सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग संडे ऑन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी, सारी देश की जिम्मेवारी है। और हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इनविटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें। हर वीक में कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जोड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है। 3rd सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदर। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी, कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूँगी कि लगभग 3,500 से भी ज़्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं। 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है। और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस, जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद। 4th सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी। हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज़्यादा बढ़ी है।
क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा कि लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज़्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है। उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीज़ें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग। कई समस्या है, उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है। कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन में, उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नागनाथ वाकमारे। Question number 125, Honorable Chairman, sir. First supplementary, you can go straight away. आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं। महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला और पुरुष को एक साथ लेके जाना, एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारा है। ऐसे ही महिला बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए, ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने था, अभी 26 महीने तक हम बढ़ाए हैं।
26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3,500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हमें एक्सटेंशन किया है। वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में? हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहे हैं सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ा रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया। आप हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022। इसका पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ा लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसको आंकड़ा किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया। इसके कारण ईपीएफओ में 2007 टू 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है। नया सब्सक्राइबर पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69। लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर। हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम। 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं। वो लोग बताए हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर। हमको बोलने के लिए खुश होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया। इसके कारण नए बच्चे, नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना। इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी एक योजना शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रेंच का पैसा लोगों एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया। वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना। इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं। एंड किसके लिए? एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार में हम बनाए। इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है, जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ। माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताइए 29 कानूनों को हम निकाल के, और ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे, वो कानून हम ऐसे रखे थे, उसको हम पूरा निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम मैं पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाया है सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था। पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नाइट ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं। ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री का तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं। इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है। ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.3 करोड़ लोग जुड़े हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पाटीदार जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है। ऑनरेबल मिनिस्टर। कर दिया है। पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड
देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रोविजन हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया है सर। थैंक यू। Thank you. Thank you. Now, question number 1 to 6, Sriman Ujjwal Devrao Nikamji. Question number 1 to 6 sir. Honorable Minister. चेयरमैन सर, मैंने उत्तर सभा पटल पर रख दिया। थैंक यू। The first supplementary, Sriman Ujjwal Devrao Nikamji. Thank you, sir. Honorable Minister, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction, or quality of representation provided to the beneficiary? Honorable Minister. धन्यवाद अध्यक्ष जी, सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चावार कितने लोग लाभार्थी हुए ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो उस स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं। डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023-24 में हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हर जगह CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर। वहाँ पे न्याय बंधु, प्रो बोनो, जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। Second supplementary, Sriman Subhasis Kundia ji. थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषाओं में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का वो अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज़्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे,
विकास भी करेंगे, विरासत को भी बचाएंगे। धन्यवाद। Now the House stands adjourned to meet at 2 p.m.